Hello students, welcome to SIBPS online classes. I am Vishali Gupta and we are starting our new chapter today, chapter 6, factors and multiples. Students, you have not read this chapter or this topic in any of the previous classes. So this is a new topic for you, factors and multiples. So today we are going to learn something about factors. So let's look at one question and understand what are factors. Let's arrange 12 students for a quiz. Let's make 12 students sit down for a quiz which is going to be held in our school. तो हम 12 students को कैसे बिठा सकते हैं क्विज में? देखो, अरेंजमेंट ए फर्स्ट तरीका जिससे हम बिठा सकते हैं. I can do this. I can make and it should be बेटा इन फैक्टर there should be equal number of students sitting in every row. ऐसा नहीं हो सकता इसमें 10 बिठा दो इसमें 2 बिठा दो. No, equal number of students should be there in every row. So in this row, how many students we have made? 6. And downside also we have made 6 students. 6 upside and 6 student downside. So 2 rows and in every row 6 students. अब देखो एक रो में कितने बच्चे हैं? 1 row is equals to 6 students and 2 rows is equals to 2 multiplied by 6. Remember multiplication में हम क्या करते थे? 1 row का दिया हुआ है और 2 row का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 6 12. इसका मतलब हमारी 2 rows में 12 students बैठे हुए हैं. Let's move to arrangement B. In arrangement B, what it has done is, in first row he has made sit only 4 students, in second also 4, and in third also 4. तो तीनों rows में 4 students बैठ गए. तो total rows कितनी थी? 1, 2, 3. 3 rows में 4 students. It means 3 multiplied by 4 that is 12. Again हमने 12 students को दूसरे तरीके से बिठा दिया. Let's move to arrangement C. In one row 3, in second row also 3, in third row also 3, and in fourth row also 3. तो देखो चारों rows में 3 बच्चे बैठे हैं तो 4 rows into 3 columns again equal to 12. इसमें भी 12 बच्चे आ रहे हैं. This was one arrangement and also 12 students were there. This was second arrangement and in this also 12 students. And this was third arrangement and in this also 12 students. तो हमने 12 बच्चों को different तरीके से बिठाया. But our answer is every time same. तो बेटा अगर same number हमें देखना है तो it can have different factors. अब हम पढ़ते हैं factors क्या होता है. According to this, I am coming to this part. Let's read it. Factor. Each of the 2 numbers which are multiplied is called factor. दोनों नंबर्स जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं जैसे कि 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया था तो 2 and 6 both are called factors. 2 and 6 both are called factors. किसके फैक्टर रहेंगे दोनों? 12 के. 2 and 6 both are factors of 12. जिन 2 नंबर्स को या जिन 3 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सभी फैक्टर्स कहलाते हैं जो नंबर दिया होता है उसके. Here 3 and 4 are factors of 12. Here and 4 and 3 are factors of 12. So these are all the factors of 12. So each of the 2 numbers which are multiplied is called factor. तो हमने यहाँ पे देखा कि आंसर कैन बी सेम. एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. तो I have done only 3 arrangement. Maybe other arrangements are also possible which I will show you in next class. So कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम फैक्टर्स की पहले. The number which divides a number completely is called its factor. अब सी इसका मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, वो उसका फैक्टर है. तो अभी जैसे मैंने यहाँ बोला 3 and 4 12 के फैक्टर है तो हम चेक कर लेते हैं. अगर 3 12 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली तो वो इसका फैक्टर है. अगर 3 12 को डिवाइड कर देगा when I divided my answer is 0. Answer question is 4 then remainder is 0. So see, the number which divides a number completely is called its factor. It means remainder is 0. अगर remainder 0 आ जाता है तो ये नंबर इसका फैक्टर है. मतलब छोटे वाला नंबर बड़े वाले नंबर का फैक्टर है. तो 3 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है. सो व्हेनेवर वी विल डिवाइड दीज नंबर एवरी टाइम रिमाइंडर विल कम 0. इसका मतलब ये सभी इनके फैक्टर्स हैं. तो फैक्टर्स कौन से नंबर हो गए? जो गिवन नंबर की जो नंबर्स उसकी टेबल में आते हैं. जैसे
3 can be divided by 12, 12 can be divided by 3, 12 can be divided by 4 also, 12 can be divided by 6 also. तो जब हम इन छोटे वाले नंबर्स की टेबल पढ़ते हैं तो ये बिगर नंबर उन सभी छोटे वाले नंबर्स की टेबल में आना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड फैक्टर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. 1 is a factor of every number. How can I say कि 1 हर नंबर का फैक्टर है? क्योंकि 1 की टेबल में हर नंबर आता है. अभी मैंने बोला जो स्मॉलर नंबर होता है जिसे हम फैक्टर बोल रहे हैं उसकी टेबल में बिगर नंबर आना चाहिए, तब वो उसका फैक्टर माना जाएगा. तो 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है ना. 1 2 2, 1 200 200, 1 3000 3000. तो 1 की टेबल में तो हर नंबर आ रहा है. सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद का फैक्टर तो जरूर होता है. जैसे हम यहाँ देखें in 12 table, it will, when I am finding factors of 12, it will be 1 multiplied by 12. तो 12 आ रहा है ना यहाँ पे, तो हर नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर खुद की टेबल में तो आएगा 1 पे, सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. हर नंबर 0 का फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि हर नंबर की टेबल में 0 तो हम ला ही सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी 12 zeros are, it would be 0. तो हर नंबर 0 का फैक्टर होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ फैक्टर इज ईदर लेस और इक्वल टू द नंबर. अगेन आई लुक एट दिस. 12 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 12. अ फैक्टर इज ईदर लेस, या तो एक फैक्टर उस नंबर से छोटा होगा या इक्वल टू होगा. कोई जहां पे 12 के फैक्टर्स क्या है 3 और 4, यहाँ पे क्या है 4 और 3, यहाँ पे क्या है 2 और 6, एंड हियर 1 and 12. तो देखो कहीं भी 12 से बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा कैसे होगा, वो उसकी टेबल में ही नहीं आएगा. तो या तो वो खुद की टेबल में आएगा या 1 की में या मिडल में कोई नंबर. सो इट कैन बी इधर लेस और इक्वल टू. फैक्टर कैन बी लेस और इक्वल टू अ नंबर. नेक्स्ट इज एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद. बाकी कोई उसका फैक्टर हो या ना हो. देयर आर सम नंबर्स जिनके कोई फैक्टर नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल 7 किसी की भी टेबल में नहीं आता, या तो 1 की में आता है या बस 7 की में आता है. सो देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ 7, 1 and 7. सो देयर आर सम मेनी ऑफ द केसेस लाइक दिस जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद. सो दिस इज समथिंग अबाउट फैक्टर्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. बाय बाय.